بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قصص الانبیاء یعنی نبیوں کے قصے نامی اس اسپیشل سیریز میں ہم آپ کو اللہ پاک کی جانب سے مبعوث کیے جانے والے پیغمبروں کی زندگی سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک اور نیا سلسلہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ کس طرح اور کن وجوہات کی بنا پر وقوع پذیر ہوا، اسے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ الصافات کی آیت نمبر 147 میں ہے، اور ان یونس علیہ السلام کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 781 تا 741 قبل از مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورۃ الانبیاء اور سورہ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ عربی میں نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورہ آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ ناظرین گرامی، قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں میں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔
उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश न कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए, यहां तक कि बहरे रूम के किनारे तक पहुंच गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बहरे रूम के किनारे आप अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुंची तो दफतन ठहर गई, आगे बढ़ती है न पीछे। कश्ती वालों ने मनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम, गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। इस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनाहगार मैं ही हूं, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तबई खौफ की वजह से था, बइज़्ने इलाही न था। और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगंबर की कोई नकलो हरकत बिला इज़्ने इलाही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरानंदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरानंदाजी में भी आप अलैहिस्सलाम का नाम ही निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मर्तबा कुरानंदाजी की गई और हर मर्तबा आप अलैहिस्सलाम का ही नाम आता रहा। कुरान करीम की सूरह अल-साफ़ात की आयत नंबर 141 में इस कुरानंदाजी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ तो कुरानंदाजी में नाम निकलने पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगह दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज रहे। ये उन्हें जमीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फिराती रही। बाज अफराद ने 7, बाज ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत चंद घंटे लिखी है। बहरहाल इस हकीकत को तो अल्लाह सुब्हानो व तआला ही बेहतर जानता है। इस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आप अलैहिस्सलाम को बिल्कुल सही सालम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट में गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल न रहा। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आप अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया। नीज एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम के पास आ खड़ी होती और आप अलैहिस्सलाम उसका दूध पी लेते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया कि इनको ले लो, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसर्रुफ नहीं, क्योंकि ये तेरी गिज़ा नहीं है। जब मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुनी। इस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ये समंदरी जानवरों की तस्बीह है। उस मौके पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम एक नहीफ और कमजोर सी आवाज किसी अजनबी जमीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शब रोज आपके पास नेक अमल पहुंचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आप अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे डाल दिया। कुरान करीम में सूरह साफात की आयत नंबर 145 ता 146 इरशाद बारी ताला है कि फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, फराख मैदान में डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। आप अलैहिस्सलाम का बदन मछली के पेट में रहने से इंतहाई लागर और कमजोर हो चुका था। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ऐसे हो गए थे जैसे चूजा जिस पर अभी पर भी ना आया हो। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है
उस वक्त बच्चे की तरह आप अलैहिस्सलाम की हालत थी और बिल्कुल धुनी हुई रुई की तरह नरमो नाजुक थे और बदन पर कुछ न था। रिवायत में है कि जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ठहर गए तो गुमान किया कि शायद वफात पा गए हैं। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने आज़ा को जुम्बिश दी तो उनमें हरकत हुई, तो फौरन सजदा रेज हो गए और बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैं तेरे लिए ऐसी जगह मस्जिद बनाता हूं जहां किसी दूसरे ने तेरी इबादत ना की होगी। नाज़रीन गिरामी, सूरह साफात की आयत नंबर 143 से 144 में अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान न करते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके मछली के पेट में ही रहते। अल्लाह अकबर। तफसीर इब्ने जरीर में हजरत साद बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह को उस नाम से पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है और जो मांगा जाए अल्लाह अता करता है, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रावी कहते हैं कि मैंने इस्तफसार किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है या तमाम मुसलमानों के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है और मोमिनीन के लिए आम, जब भी वो इसके साथ दुआ करें। क्या तुमने अल्लाह के फरमान को नहीं सुना? सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 से 88 में इरशाद रबानी है, फिर यूनुस ने अपने रब को तारीकियों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको गम से निजात दी, और हम मोमिनीन को इसी तरह निजात देते हैं। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ दुआ की उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। पिछली अक़वाम में कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल सबसे मुनफरिद है कि जिसने अजाब के वकू होने से पहले ही सिद्के दिल के साथ आजी व आहोजारी करते हुए तौबा इस्तगफार किया और अल्लाह ताला ने उस कौम से अपना अजाब हटा दिया। जबकि कौम नूह, कौम हूद, कौम साले और कौम लूत वगैरह अजाब से डराने और बार बार तंबीह के बावजूद शिरको कुफर पर ढिठाई से जमी रही और अजाब की बातों को मजाक समझती रही, चुनाचे अजाब इलाही के शिकार होकर हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान करीम में सूरह यूसुफ आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पस कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी जिंदगी में उनसे रुसवाई का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको दुनियावी फवायद से बहरामंद रखा। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम वो मुनफरिद कौम है जिस पर अजाब इलाही नाजिल हुआ तो उसने तौबा कर ली, लिहाजा अजाब इलाही उनसे दूर कर दिया गया। इस तफसीर का हासिल यह है कि दुनिया का अजाब सामने आ जाने पर भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता, बल्कि तौबा कबूल हो सकती है। अलबत्ता आखिरत का अजाब सामने आ जाने के वक्त तौबा कबूल नहीं होती और अजाब आखिरत का सामने आना कयामत के दिन होगा या मौत के वक्त। जामे तिर्मिज़ी की हदीस मुबारका है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल फरमाते रहते हैं जब तक वो गुरगुरा की हालत में ना पहुंच जाए। गुरगुरा की हालत से मुराद मौत का वो वक्त है जब नज़ा के वक्त फरिश्ते सामने आ जाते हैं। उस वक्त दुनिया की जिंदगी खत्म होकर आखिरत के अहकाम शुरू हो जाते हैं, इसलिए उस वक्त का कोई अमल काबिल कबूल नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना और उससे अपने गुनाहों की तौबा और बख्शिश तलब करना हर किस्म के मसाइब से निजात की कुंजी है। लिहाजा हर तकलीफ, दुख, परेशानी और मुसीबत में मेहरबान रब्बुल आलमीन को ही पुकारना और उसी से इल्तिजा करना चाहिए। आज मुसलमान बहैसियत एक कौम जिन मसाइब व शदायत, दुख और कुफार के शिकंजे जुल्म में जकड़े हुए हैं, इनसे निजात के लिए सबको मिलकर अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए। अपने रब्बे करीम से तौबा इस्तगफार करके उससे अपने ताल्लुक को मजबूत बनाना चाहिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से से सब्र सबात और अज़्म हौसले का दर्स मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि तमाम सुनने और देखने वालों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा है कि हमें हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन गिरामी, आज का ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही एक नए सिलसिले के साथ हाजिर होते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए
اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ نئے سلسلے تک ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔